When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi, everybody. A very, very warm welcome. Good afternoon to all the parents who have joined us. Thank you for your time. We are here today to talk to you a little bit about antenatal care during pregnancy. This session has been brought to you by Cord Life. Cord Life is one of India's leading stem cell banks. And right from the time that the pandemic started, as an organization, they were very proactive. They immediately jumped into these kind of webinars, which helped us to stay in connect with our audience and be able to continue sharing sessions like this. So thank you very much to the entire Cord Life team for facilitating these kind of sessions over the last almost 16 months now. I also have with me Dr. Sudhishri Dikshit. So thank you, ma'am, for taking your valuable time on a Sunday, and also thank you for giving us the exposure and allowing us to talk to your parents. So we hope that this would be a beneficial session for everybody. So I will do my introduction later. I'm anyways going to be in the second half of the session. So I'm going to hand over to Dr. Sudhishri Dikshit. Ma'am, please address the audience. Okay. Basically, I am speaking on behalf of Dr. Anjali Dikshit, and we'll be dealing with only the from a doctor's point of view, what all we expect from all the antenatal patients who are coming to us, and you should know what is your how we are going to manage the pregnancy as we go about. Okay, and then also I would like to speak for 5-10 minutes about COVID, the effect of COVID in pregnancy, and the vaccination, whether it can be taken by pregnant females or not. So that is something that will start. So we're very sorry. It looks like there seems to be some technical glitches. Ma'am is trying to sort it out, and the Cord Life team is helping her. So in the meanwhile, I'll move ahead with my section of the session today till they manage to solve this issue. Just give me a second. I'm going to try and also share my screen. All right. So as I said, I will do my introduction thoda sa later. My name is Sonali Shiblani. I'm a pregnancy and postnatal consultant. I am based out of Mumbai, and I have been in this business or in this practice or in this profession as a pregnancy consultant for 17 years now. Worked with more than 40,000 families, and I also have two wonderful kids, which I still call kids, but they're actually adults. So my son is turning 21 this year. My daughter is turning 19. Right. So let's move ahead and talk a little bit about pregnancy care and how you can handle yourself over these 9 months. So let's talk a little bit about pregnancy first. हम लोग pregnancy को we divide into 4 trimesters. 1, 2, and 3. I think everybody knows that. This is the 9 months. And then there is the 4th trimester, which is all about the postpartum care and recovery. So that also is an important trimester, because you are recovering from your physical changes that have happened, and over and above that, you're also adjusting to the changes that life is now brought. Having a baby is a 24-hour job, so it's really a lot of hard work. So that's your postnatal recovery period.
Now, all these trimesters can bring about many changes in your body, along with so many complaints and discomforts that mothers may have. Some of these can actually last through all the 9 months. Some can start in the beginning, again come up in the end. So even if you are in the second or third trimester, please listen through to the entire presentation, because sometimes things which happen in the first trimester may actually again happen in the seventh, eighth, and ninth month. So it is important that you know all the different facts about all the different trimesters. And you can also use it for a second pregnancy. You can help share these facts with family and friends. So we'll start with the first trimester and then take it from there. So what happens in the first trimester? Obviously, you have your positive pregnancy news. First thing that every mother does is the stick test at home. It's so popularly advertised, right? Home pregnancy tests. And when you see those 2 lines on your pregnancy test, it's obviously very exciting. And you want to go up on the terrace and you want to shout out the news to the whole world. But please first go for an antenatal checkup. When the doctor does the checkup, they will also do a routine blood test and a scan. So this helps to confirm the pregnancy. That little tiny ultrasound that is done, you will see a grayscale, right? And it kind of like, when I saw my first ultrasound like that, I was like, oh, okay, is that the baby? Because the doctor pointed out this little tiny dot and said, oh, that's the baby. And the heart is beating. So I was like, okay, all right then. Didn't seem very exciting. But that's how it is. And that's completely normal. In addition, the doctor will also suggest that you have to get some blood tests done for your iron, sugar, thyroid, also infectious diseases like HIV, hepatitis, etc., and a marker screen. So these are generally called your double, triple, or quadruple marker, depending on the risk factors. These tests are done to rule out any genetic abnormalities. So these are also blood tests, and ideally they are done right in the very beginning in the first trimester itself, so that if there is anything, it can be caught. When my mother was pregnant, they went to the doctor first time only in the 7th month. So when I shared the good news with my family, and I was talking about which doctor I should go to, my mother's general opinion was, why you have to go so early? But the advantage of going so early is that you can rule out all the possible problems that could come up, and it could result in a safe and healthy and happy pregnancy for you and your family. Some of the things that happen in this first trimester. I think the first thing is frequent urination. A lot of mothers wonder, okay, oh, the baby is so tiny, because normally we hear that as the weight grows, the belly increases, there's pressure on the bladder, and that causes frequent urination. So what is happening right in this stage? It is the hormonal changes due to which the mother will experience frequent urination. You sometimes wonder whether you should be sleeping in the bedroom or the bathroom, because the bathroom kind of becomes your best friend, and it's very annoying when you have to get up in the middle of the night multiple times. And over and above that, there will be people like me who will tell you should drink lots of fluids, have plenty of water. So you actually want to avoid having the water because you don't want to go to the bathroom so often, right? But water is very important. It helps in your digestion. It helps to prevent your urinary tract infections. So you should definitely have enough fluids, right? How can you help with your urination? Of course, avoiding public toilets is a very good thing. So before you go anywhere, make sure you use the bathroom, especially at night, when just before bedtime, don't have lots of water, have sips. So finish your quota of water during the entire day, and in the evening hours, after 9 or 9:30, you should only have little water. Have a small quantity. So that will ensure that you don't have to get up as often. When you go to the bathroom, don't be in a hurry, because hormones of pregnancy relax the muscles, which is why the bladder may not get emptied completely, and you may not realize. But as soon as you come out, after a few minutes, you feel the sensation again. So therefore, it is asked to kind of avoid the having too much of water in the night. Have sips of water. Feeling tired is also very normal, right? So it is something which is completely natural, and it happens. I used to fall asleep on the couch every day in the evening at 5 o'clock, which I normally would never do.
So exhaustion, tiredness, it's after all your body is making a brand new life. So it's doing lot of hard work. So इसीलिए ये जो थोड़ा सा tiredness होता है, it's completely natural. Because of the hormones, because the uterus is now starting to stretch, little bit of lower back pain starts. Take care of your posture. I'm going to show you some things how to do that. The breast is also one of the things which starts changing immediately. So you start feeling that your breasts have become very sensitive, your nipples are sensitive, the areola becomes darker and larger. So breast changes are very common, and you should be expecting your bra size to start changing also. So make sure that you're wearing good supportive bras. Buy 2 or 3 pieces at a time because you're going to keep needing to change them throughout your pregnancy. So don't buy too many, and try and avoid underwire bras if possible. Now, nausea is something which is very common for most mothers, but there is also some mothers who don't get any nausea. So nausea could be just a feeling of nausea, or it could be also with a little bit of vomiting, or it could be something more serious where the mother is not able to hold any liquid at all, no food, no water, and therefore she keeps vomiting and she keeps throwing up. So that is a warning, that is a pregnancy problem. So you should report to your doctor that I cannot retain any liquid, कोई भी खाना अंदर नहीं टिक रहा है, सब बाहर आ जाता है. So इसीलिए the doctor will prescribe some medicines. But if it is with certain foods, certain tastes, certain smells, then you can avoid those things. If it's happening at certain times, we can take care of it. Like for example, for a lot of women, it's in the morning. So I tell mothers that, when you get up in the morning, you first have a small biscuit or a cracker, something dry, right? And then just lie down for 15-20 minutes, let your stomach settle. Some others, when they go to the bathroom first thing in the morning and they brush their teeth, empty stomach, they don't like it. I tell them, don't do that. It's okay. Eat something and then brush your teeth because that toothpaste is causing the nausea. So a little bit of care can be done. One of the very simple tricks is using ginger flakes. So having small pieces of ginger, chewing on that can also help to reduce the feeling of nausea. Pregnancy has, as I said, lots of myths, right? You come to know that you are pregnant, you want to go and stand on the terrace and announce. And everyone is telling you, even my mother told me, नहीं, first 3 months, 12 हफ्ते किसी को कुछ नहीं बताना है. And the bad luck हो जाता है. But ये एक myth है, ये bad luck नहीं है. Actually, reality ये है कि जब हम pregnant होते हैं, तो it is a foreign body in our body. Now, most bodies can help to keep it. But if there is some abnormality, if there is some problem in the development, etc. So 26% of pregnancies can be a early miscarriage. And it's where sometimes mothers don't even come to know because it just passes out like a period. So that is something which is completely natural and we don't need to get stressed about it. We don't need to get worried about it. Another thing is that, people start craving some different types of food, sweet or sour foods. And people think it is all related to the gender of the baby. So many other things also, right? The shape of your stomach, the dark line on your stomach. So many times these are also myths. The gender of the baby cannot be predicted by these cravings. And cravings generally होती है जब हमारे अंदर कोई deficiency होती है. जैसे अगर हम throughout our normal life we are very cautious, we don't have too much of sweets, हम weight control कर रहे हैं, तो जब pregnancy होती है तो ऐसा होता है ना कि अब सब खा सकते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा मीठा खा लेते हैं and then people kind of say oh you have sweet cravings. या अगर हम खट्टा ज्यादा लेते हैं, जैसे मूवीज में जनरली दिखाया जाता है कि आम का अचार खाते हैं और इमली खाते हैं तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है. बट ये जनरली होता है बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके आयरन लेवल्स ड्रॉप होते हैं एंड विटामिन सी की आपको जरूरत पड़ती है. ज्यादातर इन द खट्टा फूड्स, इन द सावर फूड्स, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है. सो मोस्ट मदर्स विद एन आयरन डेफिशिएंसी विल स्टार्ट क्रेविंग समथिंग सावर. अब हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर पे. अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एनोमली स्कैन होता है. आई कॉल दिस द फन स्कैन. ये थोड़ा सा लंबा होता है, अराउंड 20 to 30 मिनट्स चलता है. इसमें आपको बेबी के हर एक बॉडी पार्ट को दिखाते हैं एक्सेप्ट द जेंडर. ऑफ कोर्स वी डू नॉट डिस्क्लोज द जेंडर ऑफ द बेबी. सो बाकी सारा बेबी आपको मतलब एकदम अच्छा विजन मिलता है, अच्छे पिक्चर्स मिल जाते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट मेमोरी. ये स्कैन आपके हस्बैंड को भी जरूर अटेंड करना चाहिए. नाउ जनरली क्या होता है कि जब हम स्कैन के लिए जाते हैं तो बेबी अगर सो रहा होता है तो वी डोंट गेट द राइट इमेजेस एंड इट्स नॉट एक्साइटिंग.
सो अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको शुगर वगैरह सब अलाउड है, सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि स्कैन पे जाने से पहले यू हैव अ ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ समथिंग स्वीट and then you go. So generally what happens is when you have something sweet in the liquid form, the baby tends to wake up. And फिर वो मूवमेंट ज्यादा होती हैं, बेबी का हर एक पार्ट आपको अच्छे से दिखाई देता है, एंड यू कैन रिटेन दीज एज मेमोरीज फॉर योर लाइफ टाइम. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हमने शुगर टेस्ट, सिंपल शुगर टेस्ट जो रैंडम शुगर है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाया था. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, लगभग 26 to 28 वीक्स के आसपास. एंड ये टेस्ट से अगर कोई भी एनोमलीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होने के चांसेस हैं, सो we'll come to know. And then that can put you at a lower risk because gestational diabetes definitely affects the baby also. All throughout your trimesters, blood pressure और weight check तो हमेशा किया जाएगा. काफी मदर्स को चिंता होती है अगर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, वेट गेन बहुत कम होता है. तो वेट गेन बहुत ज्यादा होता है तो ऑफ कोर्स भी वारी, पर अगर वेट गेन कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी आपने एक्सेस वेट से स्टार्ट की है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू मे नॉट गेन एज मच वेट. अगर आपकी प्रेगनेंसी आपने नॉर्मल वेट पे स्टार्ट की है तो वी एक्सपेक्ट कि 10 to 12 किलोज का आपका वेट गेन होगा. और अगर आपकी प्रेगनेंसी अंडर वेट है तो यू माइट एंड अप गेनिंग मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द व्हाट यू हैव स्टार्टेड विद. मेन पॉइंट ये है कि आपका वेट गेन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द बेबीज डेवलपमेंट. सो अगर आप नॉर्मल हो और बेबी का डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, so then we don't worry about the weight gain of the mother as much. Another thing that also might be recommended, and it's more recommended now during the COVID times, and ma'am is going to talk about COVID as well, is a flu shot. So flu shot has not been so common in India before this, but now because the symptoms are similar, so for pregnant women the recommendation is कि take a flu shot अगर आपके डॉक्टर आपको recommend करते हैं तो. जो फिजिकल चेंजेस होती है इन दिस ट्राइमेस्टर, तो आपका एब्डोमेन में वेट ग्रो हो रहा है, द वेट गेन इज देयर, एंड अभी प्रेगनेंसी छुपाई नहीं जा सकती. मतलब आप लूज कपड़े पहनकर भी पीपल विल कम टू नो कि यू आर गेनिंग वेट. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन. नोशिया वगैरह सब सेटल हो जाता है, एपेटाइट आपकी इंप्रूव हो जाती है. सेकंड ट्राइमेस्टर जनरली वी कॉल इट द हैप्पी ट्राइमेस्टर, इट्स द फन ट्राइमेस्टर, राइट? सो यू हैव मोर एनर्जी, नोशिया इज गॉन and you can eat better. यहाँ पर आपको posture पे बहुत ज्यादा focus करना चाहिए because weight gain हो रहा है, so posture has to be taken care of because otherwise it can result in more back pain and then you will require physiotherapy and it can last even for months after you deliver. So let's take a look at how we can influence your posture. ये आपका standing posture है. अगर आप देखेंगे तो जैसे ये मदर अगर समझो खड़ी है तो नॉर्मली भी एक छोटा सा कर्व होता है आपके बैक में, एंड ये जैसे वेट गेन होता है तो ये कर्व थोड़ा और एग्जैजरेट हो जाता है. दूसरी चीज ये होती है कि एज ब्रेस्ट में भी वेट गेन होता है, आपके ब्रेस्ट भी इस तरह से सैग होना शुरू होते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द बैक. ये जो एस शेप का पोस्चर बन जाता है उससे बैक में ज्यादा पेन होती है. तो आपको हमेशा इरेक्ट स्टैंड होना है और अपने शोल्डर्स को अच्छे से पुश बैक करना है, राइट? सो यू मेक श्योर कि यू स्टैंड इरेक्ट ताकि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ना हो. ये आपके बैठने का पोस्चर है. जनरली मदर्स जो काम करती हैं डेस्क पे, कंप्यूटर्स पे, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम बैठते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए भी तो भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको इस तरह स्लाउच नहीं करना है, राइट? क्योंकि यहाँ पे फुल बैक सपोर्ट नहीं है, आपको इरेक्ट बैठना है जैसे ये इमेज में दिखाया गया है जहां पर फुल बैक सपोर्ट लिया गया है. तो जब भी आप बैठते हैं अगर आप चाहें तो अपने बैक के पीछे जो स्मॉल ऑफ द बैक जिसको हम बोलते हैं, यू कैन पुट अ कुशन ओवर देयर व्हिच विल गिव योर बैक द फुल सपोर्ट. अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के बारे में, राइट? प्रेगनेंसी में खाना पीना तो ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली हेल्दी फॉर द बेबी. So जो भी आप meals लेते हैं या snacks लेते हैं, you should try to ensure that they are healthy. They should not be something which is just to fill your stomach. There should be good nutritional value to it. And how are you going to decide the good nutritional value? Let's take a look. क्योंकि healthy eating habits सिर्फ बेबी के लिए नहीं होते. जनरली हम मदर से पूछते हैं कि क्यों आपको सही खाना चाहिए, वो अपने पेट पे हाथ रख के बोलते हैं बस मेरे बेबी के लिए, बट ये मदर के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है. एंड अगर मदर और बेबी हेल्दी रहेंगे तो ये फैमिली के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है.
बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? फिजिकल डेवलपमेंट तो आपको पता है, जो जब बेबी को, मैंने आपको बताया, जो पहला अल्ट्रासाउंड होगा इतना छोटा सा डॉट के जैसे बेबी दिखेगा, और वो जब बेबी बॉर्न होता है इट्स अ फुल बेबी, राइट, with everything, with a brain, with heart, lungs, kidneys, a full baby. So ये जो physical development है ये womb में ही होती है. डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं है कि अच्छा अब हार्ट बन रहा है, अब किडनी बन रही है, वो फुल रेडी होके आती है. तो जो बेस ऑर्गन्स हैं वो सारे बन गए होते हैं. सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप अगर सही खाते हैं सो इट विल एंश्योर गुड फिजिकल डेवलपमेंट. आई डोंट नो आपने ये सुना है कि नहीं, बट मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट हैपेंस इन द वूम एंड देन इन द फर्स्ट 3 years आफ्टर लाइफ. So womb के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर, the growth of the brain happens and then उसके बाद जो न्यूरॉन कनेक्शंस वगैरह होते हैं वो डिलीवरी के बाद होना शुरू होता है. So ये जो सेल्स हैं, जो मेंटल ब्रेन सेल्स हैं, उनको बनाने के लिए मदर्स नीड टू ईट राइट. Very important is the baby's birth weight. Generally Indian babies we have seen are born between 2.5 to 3.5 kilos. जब भी हम किसी से मिलते हैं हॉस्पिटल में, हम जनरली 3 सवाल पूछते हैं, लड़का या लड़की, नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन, और तीसरा जनरली ये होता है कि बेबी का वजन क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ द बेबी. क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये है कि बेबी के वजन से बेबी का हेल्थ पता लगता है. अगर बेबी ओवरवेट है तो डिलीवरी में डिफिकल्टी होगी, फ्यूचर में ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स रहेंगे क्योंकि वेट गेन ज्यादा ही हो जाएगा. और अगर बेबी अंडर वेट है तो फ्यूचर में चाइल्डहुड के जो इलनेसेस हैं जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इनका हमने ज्यादा इंसिडेंस देखा है. और डिलीवरी भी आसान नहीं होती है, डिलीवरी भी मुश्किल होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेबी के वजन को ध्यान में रखें. एंड अगर आप सही खाते हैं, आप गलत चीजें नहीं खाते, तो आपके बेबी का भी जो वजन है वो बिल्कुल सही होगा. मदर के लिए जो बेनिफिट्स है, बेसिकली प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है, सेफ रहती है, इसमें आपके हार्मोन्स अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन. डिलीवरी भी सही टाइम पे होती है. 37 वीक्स को हम फुल टर्म मानते हैं, 37 to 40 वीक्स. अगर बेबी बहुत जल्दी आ जाते हैं तो एनआईसीयू की जरूरत पड़ती है, और अगर बेबी ज्यादा रुक जाते हैं अंदर तो फिर हमको इंड्यूस करना पड़ता है, कभी सर्जरी करनी पड़ती है, बेबी की ग्रोथ शायद ना हो बराबर. तो ये सारी चीजों के लिए बेबी को 37 to 40 वीक्स के बीच में ही डिलीवर होना चाहिए. और मदर का भी जो वेट गेन है वो बिल्कुल ऑप्टिमल रहता है, वो बिल्कुल सही रहता है. सो इट्स अ बेनिफिट फॉर द बेबी एंड इट इज अ बेनिफिट फॉर द मदर. प्रेगनेंसी के दौरान यू नीड 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज. आप आई थिंक सबसे सुन रहे होंगे कि यू नीड टू ईट डबल, यू नीड टू ईट डबल. यू डोंट नीड टू ईट डबल, यू नीड टू ईट फॉर 2. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो दूसरे के लिए खा रहे हो वो एकदम छोटू सा है, राइट. तो आपको 2 चपाती अगर आप खाते हो तो आपको 4 नहीं करनी है. अगर आप 1 कटोरी सब्जी लेते हो तो डजंट मीन यू हैव टू हैव 2 कटोरीज ऑफ सब्जी, राइट. जो 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो 24 आवर पीरियड में 2 रोटीज, 1 bowl of vegetable and 1 bowl of curd. This will account for 300 extra calories. So you don't have to increase your diet to double of everything. You just need to increase your diet by about 300 extra calories. And breastfeeding के टाइम पे 300 to 500 extra calories की जरूरत पड़ती है. तो breastfeeding के टाइम पे weight loss के बारे में नहीं सोचना चाहिए. You should consume the same amount of calories जैसे आप pregnancy में खा रहे हैं. And just make sure that these calories are coming from healthy foods and not from excess ghee, sugar, fried foods and other junk foods. मील्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. जब हम मील्स को बैलेंस करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स. जैसे आप अगर अपनी 5 उंगलियां अपने सामने रखें तो आपकी एक जो मील है, जो आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें हेल्दी कार्ब्स होने चाहिए, जिससे जो आपकी ग्रेन्स है, जैसे राइस हो गया, ब्राउन राइस ले लीजिए, गेहूं की रोटियां, नाचनी, जवर, बाजरा, ओट्स, ये सारे आपके ग्रेन्स में आ जाते हैं. ब्रेकफास्ट टाइम पे उपमा, पोहा, इडली, डोसा, ये सब भी आप कंज्यूम कर सकते हैं. दूसरी चीज होती है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. जब भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ सीजनल लें. अभी मैंगोज का सीजन नहीं है तो मैंगोज मत लीजिए, स्ट्रॉबेरीज का सीजन नहीं है तो स्ट्रॉबेरीज मत लीजिए. अभी जो फ्रूट्स मिल रहे हैं सीजनल वही लेने चाहिए, जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं वही लेने चाहिए. ऑल्सो जितने आप ज्यादा कलर्स लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू.
राइट? तो क्योंकि हर कलर का एक अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है, सो मेक श्योर दैट आप अलग अलग कलर्स, क्योंकि हमको यही सब्जी पसंद है तो हम यही खा रहे हैं, यू शुड नॉट डू दैट. यू शुड हैव एज मेनी डिफरेंट कलर्स व्हिच आर अवेलेबल इन द सीजन एज पॉसिबल, राइट? The third thing is that you have to have enough protein. Protein is very good for mental development, brain development, and it's also good for overall growth. Vegetarians के लिए generally तकलीफ होती है, तो हमारा recommendation ये होता है कि whenever you eat, breakfast, lunch, dinner, mid morning snack, mid evening snack, midnight snack, जो भी आप snack लेते हो, make sure it has some protein in it, right? So जैसे अगर आप लंच और डिनर में आपने दाल ले ली, या आप नॉनवेज लेते हो तो नॉनवेज ले लिया, ब्रेकफास्ट के टाइम पे यू कैन हैव एग्स, यू कैन इंक्लूड सम दाल चीलास, दाल पराठास, पनीर पराठास, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? और मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग में नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स, ये सारी चीजें यू कैन इंक्लूड इन योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. फोर्थ फिंगर होती है आपकी कैल्शियम की. बेबी की हड्डियां बन रही है, दांत बन रहे हैं, सो इट्स वेरी एसेंशियल कि आपको कैल्शियम सफिशिएंट लेना है. नो, आप पूछोगे कि डॉक्टर ने तो सप्लीमेंट दिया हुआ है तो फिर और क्या लेने की जरूरत है, कैल्शियम की गोली तो खा रही हूँ, बट दैट इज नॉट द थिंग. डाइट से भी कैल्शियम सही आना चाहिए. काउज मिल्क, बफलोज मिल्क, जो आपको दूध अच्छा लगे, बट लेकिन स्किम्ड मिल्क और टोन्ड मिल्क, फुल फैट मिल्क, गाढ़ा दूध पीने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ फैट्स एक्स्ट्रा होते हैं. सो दिस यू कैन कीप इन माइंड, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होते, राइट? लास्ट चीज जो आपको कंज्यूम करनी है वो होते हैं आपके फैट्स. जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल, घी, बटर कुछ तो डालते ही हैं, राइट? तो दैट इज इनफ, इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है. सो जितना आपका नॉर्मल खाने में पड़ता है विदाउट फ्राइंग द फूड, दैट इज व्हाट यू शुड टेक. सो वो जो अगर कहीं पर हैबिट है कि हर चीज हम फ्राई करके खाते हैं, उस हैबिट को आपको अभी दूर रखना है. अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं है. बेबी इज स्टिल वेरी टाइनी, आपके रिजर्व्स से ये खाना आ रहा है. अगर नौशिया से आपसे हर एक चीज नहीं खाई जा रही, बट आप कुछ कुछ खा सकते हो, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट. पानी पीना बहुत जरूरी है, तो नौशिया को भी हेल्प करता है कि यू कैन कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड. ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करें बिकॉज इट विल इंक्रीज योर नौशिया. स्मॉल मील्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो जो कॉन्सेप्ट था दिन में 3 बार हम खाते हैं, यू हैव टू ब्रेक इट अप इनटू प्रोबेबली 6-7 मील्स, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी है या टोस्ट है, ये आप अपने स्टमक को सेटल करने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं. इस ट्राइमेस्टर में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड देंगे जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, प्लस अ मल्टीविटामिन व्हिच विल बी आल्सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसको हम जनरली कंफर्टेबल ट्राइमेस्टर बुलाते हैं. एंड यहाँ पर आप बस बेसिकली सेंसिबल खाइए, डू नॉट गेन एक्सेसिव वेट, क्योंकि अभी खाने की परमिशन मिल गई है. इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो सारा कुछ खा लिया, रास्ते से खा लिया, जंक फूड खा लिया, फ्राइड फूड्स खा लिया. रिमेंबर माई 5 फिंगर्स. जब भी आप खाना खाते हो, ये 5 उंगलियों के बारे में जरूर सोचिए, सो दैट यू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. और मिथ्स पे मत जाइए. जैसे आई हैड अ मदर हु सेड के रोज सुबह उठ के मुझे कुछ सफेद खाना है क्योंकि उससे बेबी का रंग गोरा हो जाएगा. दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो इस मदर ने क्या किया कि वो रोज सुबह उठ के शक्कर खा लेती थी, क्योंकि शक्कर सफेद होती है, तो शी थॉट के बेबी का रंग गोरा हो जाएगा. बेबी का रंग इन चीजों से गोरा नहीं होता. ऐसी बहुत सी मिथ्स हैं, सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ मिथ्स, बिकॉज इससे आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो सकता है. थर्ड ट्राइमेस्टर इज द वेरी रैपिड ग्रोथ टाइम. इसमें बेबी का वेट सबसे रैपिडली ग्रोथ होता है, तो गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो हेल्दी होते हैं वो आपको लेने हैं. आयरन लेवल्स आपके ड्रॉप होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, एंड आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूरिंग द डिलीवरी यू विल लूज ब्लड, तो आपका हेमोग्लोबिन लेवल्स ड्रॉप होगा. इसीलिए डिलीवरी के बाद बहुत सारी मदर्स को वीकनेस होती है. So include a lot of iron rich foods in your daily diet. That will help in making sure कि आपका जो hemoglobin levels है वो सही से maintain रहता है. Omega 3 अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये भी आपको जरूर लेना चाहिए, because omega 3 fatty acids जो होते हैं is very contributing. It's called DHA also. And अगर आपने सुना है तो DHA is one of the main components for brain growth and development. अभी सिंस आपका एब्डोमेन इतना बड़ा हो गया है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, क्योंकि बेबी इज ऑक्यूपाइंग सो मच स्पेस, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर द स्टमक टू ग्रो. सो इसीलिए ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड हैव स्मॉल पोर्शंस.
don't have too many, don't try to eat a large meal at one time. ये कुछ pregnancy superfoods हैं which I recommend to all the mothers. They should consume this in their diet on a daily basis. Sweet potatoes, eggs, green leafy vegetables, pulses, legumes, lean meat, मतलब skin वगैरह निकाल के जो fat का layer है वो निकाल के, berries अगर season में हो तो, whole grains, avoid all the refined grains like white rice, maida. Avocados अगर आपके एरिया में अच्छे मिलते हैं तो you can have half an avocado every day. And dry fruits, nuts and seeds. So these are things that you should try and include as much as possible in your daily diet. ये कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे रॉ मीट. अगर ऐसा लग रहा है कि जो कुक हुआ है वो सही नहीं है तो मत खाइए, बिकॉज इससे इन्फेक्शन हो सकता है. जो इंडियन चीजेस मिलते हैं दीज आर ऑल फाइन, जो जैसे अपनी अमूल है, ब्रिटानिया है, गो है, बट द सॉफ्ट चीजेस जो फॉरेन चीजेस है इनको आपको अवॉइड करना है. मिल्क अगर आपके बगल में तबेला है, गाय भैंस है और डायरेक्टली मिल्क आता है तो उसको पैस्चराइज करके ही पीना चाहिए. सो मेक श्योर दैट आप अनपैस्चराइज डायरेक्ट तबेले का दूध यू आर नॉट टेकिंग. रॉ एग शुड बी अवॉइडेड. सो सनी साइड आप वो जो हाफ फ्राई होता है यू हैव टू अवॉइड. मेक श्योर कि जो डेजर्ट्स वगैरह भी है ना जो आप लेते हो, ध्यान रखें कि उसमें कोई रॉ एग्स ना हो. जैसे चॉकलेट मूज में रॉ एग पड़ता है, कोई आइसिंग्स में रॉ एग पड़ता है, सो इससे भी इन्फेक्शन होता है. Fish in excess should not be taken because इसमें mercury levels बढ़ जाते हैं. So twice or thrice a week is perfectly okay. You can consume fish. Ajinomoto एक Chinese food में काफी popular है और इसीलिए pregnant mothers को Chinese food मना कर देते हैं. Studies have shown कि excess consumption of Ajinomoto का baby के brain development पे फर्क पड़ता है. But excess consumption. So अगर by chance कहीं थोड़ा सा खा लिया तो don't panic, don't get scared. कैफीन जैसे चाय, कॉफी एंड एरिएटेड बेवरेजेस आपको अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इसमें कैफीन है एंड दैट विल इंटरफियर विथ योर आयरन अब्सॉर्प्शन as well as it will cause frequent urination. Alcohol and any forms of drugs an absolute no during pregnancy. Make sure कि आप ये कुछ चीजों का ध्यान रखें. डेंटल हाइजीन में रोज दांत ब्रश करना है दिन में 2 दफा. मसाज योर गम्स. अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो डेंटल चेकअप करवा लीजिए. यू कैन यूज अ माउथ वॉश which has got fluoride in it. Eye checkup is also something which can happen because hormonal changes की वजह से आंखों का जो नंबर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. जारिंग मूवमेंट्स ये आपको अवॉइड करनी है, जैसे 2 व्हीलर्स है या रिक्शाज है, या अगर आप कोई एक्सरसाइज क्लासेस करते हो जहाँ पर बहुत जंपिंग एक्टिविटीज हैं, यू शुड अवॉइड दिस. बेबी के जो मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो एवरी मदर विल फील डिफरेंटली, बट वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 10 to 12 movements every day. So starting from the time that you start feeling the movements, for some mothers it starts at around 24-25 weeks also, but most mothers by 18 to 20 weeks will start feeling the movements. So we need about 10 movements every day. And any vaccinations which are recommended during the pregnancy, जैसे अभी आपका टेटनस वैक्सीन 3rd trimester में डॉक्टर्स जनरली करवा देते हैं. So think about those vaccinations also. अगेन प्रेगनेंसी के बहुत मिथ्स होते हैं, जैसे डार्क लाइन आ गई पेट पे तो लड़का है, नहीं आई लाइन तो लड़की है. बट 85% ऑफ मदर्स को ये लाइन आती है बिकॉज इट्स ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस. इट्स कॉल्ड द लीनियर नायग्रा. एंड इतने तो बॉयज नहीं है ना, राइट? वर्ल्ड में गर्ल्स भी बहुत है. तो ये जो लाइन है वो इज रिलेटेड टू योर हार्मोन्स. इट इज नॉट रिलेटेड टू द जेंडर ऑफ द बेबी. एसिडिटी अगर मदर को होती है तो इट शोज दैट द बेबी हैज गॉट अ लॉट ऑफ हेयर. ये एक मिथ है. बट ये इसमें एक्चुअली एक छोटी सी स्टडी हुई थी. इट वाज अ स्मॉल स्टडी. इसके लिए इसकी ज्यादा बातें नहीं हुई है, बट एक स्मॉल स्टडी थी जिसने मदर्स को इवेल्युएट किया था. एंड जिनको एसिडिटी थी प्रेगनेंसी में उनके बेबीज को अगर देखा गया तो उनके बाल बहुत थे डिलीवरी के टाइम पे. सो वेल व्हाटएवर, इट डजंट रियली मैटर. Even if the baby is born bald, don't worry. आपके बेबी का हेयर ग्रोथ by the first 1.5 year पे अच्छे से हो जाएगा. 3rd trimester पे आपका ग्रोथ स्कैन होगा. दिस इज एन अल्ट्रासाउंड. जो सारे ब्लड टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस, आयरन, शुगर, थायराइड हुए थे इन द 1st trimester, ये अब रिपीट होते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल प्रोसीजर्स.
Right, ma'am is going to talk about COVID, so she will tell you about the COVID tests also. Tetanus vaccine, दो लेने पड़ते हैं, 2 doses होते हैं, single and then booster, and these are given 1 month apart. ये schedule भी आप अपने maternity home doctor से consult करके decide कर सकते हैं. It's very important, must take it. Of late again, Tdap, which is for whooping cough. ये vaccination भी काफी doctors recommend कर रहे हैं, so you can discuss with your doctor. Because इसके symptoms काफी similar होते हैं again to COVID, and vaccination taken after 32 weeks can give some protection to the baby also against whooping cough after delivery. So it is something which is being talked about now. इस टाइम पे आपको ब्रैक्सन हिक्स के कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे. ये फेक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इससे यूट्रस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसे फील होता है कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, एब्डोमेन टाइट हो रहा है, बट दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल. अगर इसमें पेन होता है तो प्लीज लेट द डॉक्टर नो. क्रैम्प्स में, लेग्स में अगर क्रैम्प्स होते हैं तो यू हैव टू एलिवेट योर लेग्स. सो लेट मी शो यू व्हाट यू हैव टू डू. दिस इज हाउ यू हैव टू एलिवेट योर लेग्स, राइट. सो मेक श्योर कि आप जब आप एक ही पिलो या एक पिलो पे पैर ऊपर नहीं करना है. अगर वाकई में लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पैर सूज रहे हैं, तो पानी का जो इंक्रीमेंट है, वाटर इनटेक आपको इंक्रीज करना चाहिए और एलिवेशन आपको इस तरह से करना है. थकावट वापस आ जाती है इन द थर्ड ट्राइमेस्टर विच इज नॉर्मल. बैक पेन भी काफी हद तक इंक्रीज होता है. अगेन ये पोस्चर की वजह से है, तो मेक श्योर कि आप अपने पोस्चर्स के ऊपर सही ध्यान दें. बेबी की पोजीशन फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी शुड बी हेड डाउन. सो ये आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है कि बेबी की क्या पोजीशन है. अगर बेबी ब्रीच जैसे कि बटक्स या लेग्स फर्स्ट है या फेस या शोल्डर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है, तो ये डिलीवरी सर्जिकल हो जाती है, सी सेक्शन होता है. 9th मंथ में डिलीवरी हो गई तो ठीक है, बट 9th मंथ मैम आपका शुरू होता है इन द 35th वीक. ये आपको मदर्स याद रखना है. तो 35th वीक की डिलीवरी फिर भी थोड़ी जल्दी है, तो 37 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी हो तो ठीक है. 37 to 40 इज आइडियली रेकमेंडेड. 40 to 42 will be dependent on the mother's condition and the doctor's. So the doctor has to check the baby and the mother, and if everything looks okay, they may decide to wait, but that's very case to case. Most deliveries will happen between 37 to 40 weeks. प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक नॉर्मल पीरियड है, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर बॉडी. ये बिल्कुल नॉर्मल है एंड आपकी बॉडी को पता है कि उसको क्या चाहिए. सो अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू द बॉडीज नीड्स. ट्रस्ट नेचर एंड अलाउ योर प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम फेज टू बी रिलैक्सिंग एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस, राइट. सो मेरा कंटेंट यहाँ खत्म होता है. आई विल हैंड ओवर बैक टू डॉक्टर दीक्षित so that she can also kind of share her viewpoint. I think the technical glitch has been taken care of. So once ma'am is done, then I will again take over and do the closing of the session. Ma'am, you're on mute. Very beautiful. Yeah, everything. I think that you've covered almost everything that's there related to pregnancy, but yeah, okay, little bit. I'll just tell in short once more as a summary of whatever she told. She told almost everything. So basically, first trimester we are like we are calling you every monthly only because the pregnancy is still inside your hip bone. So there's nothing much for us to see at that time, but yeah, to document the baby's heartbeat and to do serial scans to see whether the like baby is growing or not. The measurement can only be done by ultrasound. तो इसीलिए आपको हम हर महीने पे बुलाते हैं और अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा. उसके अलावा पहले 3 महीने में आपको सिर्फ फोलिक एसिड हम एडवाइस करते हैं खाने के लिए. फोलिक एसिड की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के सारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, तो वो सेल जैसे मैम ने पहले बताया था सेल मल्टीप्लाई होता है, तो उसके लिए फोलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है. तो इसलिए उस टाइम पे फोलिक एसिड की टैबलेट लेना जरूरी है. और जब आप हमारे पास पहली बार आते हो तो हम आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं. बहुत सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एकदम से इतना सारा खून ले लिया बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या मदर की बॉडी रेडी है एक्स्ट्रा बेबी का लोड हैंडल करने के लिए.
तो इसलिए उस टाइम पे हम आपकी किडनी का फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है, थायराइड कैसा है, हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, उसके खूब सारे टेस्ट कराते हैं हम। पर उसके बाद फिर वो सब रिपीट नहीं होते जब तक जरूरत ना हो तब तक। थायराइड का टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो आपका फर्स्ट 3 मंथ्स में हम करा के रखते हैं, क्योंकि मदर को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको उसी टाइम पे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि अराउंड 2% पेशेंट्स में जो मदर्स हाइपोथायरॉयड होती है, बेबी में भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस है। तो इसलिए हम जो भी, आप अगर ऑलरेडी हाइपोथायरॉयड हो और आप टैबलेट ले रहे हो तो उसको छोड़ना नहीं है। प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने और डिलीवरी के बाद भी 6 हफ्ते तक हम एडवाइस करते हैं कि वो टैबलेट कंटिन्यू करनी है, उसको नहीं छोड़ना। उसके अलावा फोलिक एसिड की एक टैबलेट एडिशनल हम एडवाइस करते हैं। आयरन कैल्शियम की टैबलेट यूजुअली पहले 3-4 महीने में नहीं दी जाती है। इसके अलावा आपका एक 3rd मंथ में हम एक स्कैन करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया था, एक डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, ये असेसमेंट होता है। उसके साथ एक एंटी का स्कैन होता है, बेसिकली ये देखने के लिए कि कुछ एनॉमलीज हैं जो हम स्कैन से और ब्लड लेवल्स, हॉर्मोन्स का लेवल्स देख के डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जरूरत पड़े तो समय से पहले, अगर मतलब वो बच्चा ताकि आगे और ग्रो ना करे, हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी। इसलिए 3rd मंथ में आपको एडवाइस किया जाता है कि आप जाके वो एंटी स्कैन या एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग कराएं। उस पर आपको ये बात समझनी है कि ये 100% डायग्नोस्टिक नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्ट लो रिस्क आई है, आपने टेस्ट कराया है और वो लो रिस्क आई है, तो 99% चांस है कि कुछ नहीं होगा, बट ऑलवेज देयर इज अ 1% रिस्क कि फिर भी बेबी बाहर डिलीवरी होने के बाद भी दोबारा कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होने का चांस होता है। सेम थिंग होता है जो 5th मंथ पे आपका एनॉमली स्कैन जिसके बारे में बताया था, उसमें आपको सब बेबी का फॉर्मेशन कैसा है, उसके ऑर्गन्स ठीक से बने हैं कि नहीं बने हैं, फिंगर्स, टोज, लेग्स, सब कुछ, बोन्स वगैरह ठीक है कि नहीं है, ये देखा जाता है। बट वो भी एक स्कैन है, मतलब वो भी 100% डायग्नोस्टिक नहीं है। देयर इज ऑलवेज अप 2 to 3% रिस्क कि आफ्टर द बेबी डिलीवर्स ऑल्सो सम एनॉमली कैन बी देयर। ठीक है, कुछ बच्चों में क्या कहते हैं, जैसे मतलब बोलते हैं कि यूरिन के इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या मोशन जहां से पास करते हैं उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो छोटे छोटे अनोमलीज का फिर भी रिस्क रहता है अगर आप अनोमली स्कैन करा लो, बट 95% हम रियश्योर्ड रहते हैं कि अगर ये स्कैन नॉर्मल है तो उसमें और कुछ अबनॉर्मेलिटी नहीं होगी। उसके बाद प्रेगनेंसी में एक और जो कॉमन कंप्लेंट होती है वो होती है वाइट डिस्चार्ज की। तो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, एक तरीके का बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म है कि मतलब जितना भी सिक्रीशंस, नीचे से कोई इन्फेक्शन ऊपर यूट्रस में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए खूब ज्यादा सिक्रीशंस निकलते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको बस ये है कि नीचे हाइजीन मेंटेन करके रखना है। अंडरगारमेंट से हर 8 घंटे पे 10 घंटे पे चेंज करते रहो। और क्या कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब उसमें इचिंग हो रहा है या स्मेल आ रही है, तो फिर आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए। वरना वाइट डिस्चार्ज के लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, डिलीवरी के बाद अपने आप कम हो जाता है। देन 2nd ट्राइमेस्टर में जैसा कि उन्होंने बताया ऑलरेडी बहुत अच्छे से कि मतलब आपको आयरन कैल्शियम स्टार्ट करवाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाने को बोलते हैं, प्लस आपको इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाने को बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बेसिकली हम क्यों आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिनको प्रेगनेंसी में हर इन्फेक्शन, छोटे से छोटा इन्फेक्शन बड़ा होकर निकलता है, क्योंकि एक तरीके से इम्यूनिटी बॉडी की सप्रेस्ड होती है। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि बेटर है कि जो चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो बीमारी ना हो, तो इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि फ्लू का वैक्सीन लगवाओ। प्लस साथ में मदर से बेबी को भी एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, तो बेबी भी एक तरीके से उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा के लिए इम्यून हो जाता है। तो इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि फ्लू का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। देन इसके अलावा बेबी का मूवमेंट्स कब फील होना शुरू होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोग जिनका पहली प्रेगनेंसी होती है उनको कभी कभी 6ठे महीने में, 5वां महीना खत्म होने पे थोड़ा थोड़ा बेबी का मूवमेंट फील होना शुरू होगा,
जो कि विद टाइम जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है आपको और अच्छे से अप्रिशिएट होगा। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनका सेकंड है या थर्ड प्रेगनेंसी है, उनको ऑलरेडी पता है कि बेबी मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा पहले पता चल जाता है। उसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। एक बार आपको पता चलना शुरू हो गया, उसके बाद वो कंटिन्यूसली पता चलते रहना चाहिए, वो हमारा मेन एम होता है। तो वंस आपको 5th मंथ या 6th मंथ से पता चलना शुरू होता है, उसके बाद बेबी किक कर रहा है या थोड़ा सा हिला या फिर बेबी पूरा घूमा, ये सारे तीनों मूवमेंट्स मिला के आपको एक 12 घंटे में कम से कम 10 से 12 मूवमेंट्स फील होने चाहिए, जिसको मतलब अब पूरे 12 घंटे तो हम लोग जगते नहीं है और हमें पता भी नहीं होता कि हम मूवमेंट कब हुआ, कभी कभी मिस हो जाता है। तो उसका इजी तरीका ये होता है कि जो हम 3 मेजर मील्स लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बाद हम बोलते हैं कि आप लेट जाओ, 1 घंटा लेटो। उस 1 घंटे में अगर आपको 3 से 4 मूवमेंट्स मिल रहे हैं तो मतलब कि आपको पूरे 12 घंटे में अराउंड 12 मूवमेंट्स आपको मिलेंगे, तो दैट इज ओके। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा और कुछ चीजें होती है जिनका ध्यान रखना है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी, 6th मंथ 7th मंथ पे आओगे आप, थर्ड ट्राइमेस्टर जब आपको शुरू होता है, पैर में सूजन आनी शुरू होती है। एक पैर की सूजन जो शाम को ज्यादा है और जब आप सुबह सोकर उठ रहे हो फिर वो नहीं है, वो नॉर्मल स्वेलिंग होती है, फिजियोलॉजिकल एडिमा कहते हैं। प्रेगनेंसी का यूट्रस का वेट बढ़ रहा है, पैर पे प्रेशर डालता है, उसकी वजह से वो दिख रहा है, होती है। और वो आराम करोगे, थोड़ी देर लेटोगे तो वो कम हो जाएगी, उसमें परेशान नहीं होना। लेकिन अगर ये ऐसी स्वेलिंग है कि आप सुबह सो के उठ रहे हो, आपने अच्छा खासा 6 घंटे का 8 घंटे की नींद करी, उसके बाद भी आप सोकर उठ रहे हो, वो सूजन वैसी की वैसी है, या फिर एक पैर में सूजन हो रही है, या फिर सर में दर्द हो रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास आना है। सिमिलरली जो पेशेंट्स को अनीमिया होता है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप सारा काम, ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पहले कैसा था हीमोग्लोबिन, हर मरीज का 6ठे महीने ऑनवर्ड्स हीमोग्लोबिन कम होगा। जब भी आप अपने 6th या 7th मंथ में जाके एक और बार हीमोग्लोबिन चेक कराओगे तो पहली बार चेक कराए से कम मिलेगा, उसमें परेशान नहीं होना, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज होती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको सांस फूल रही है साधारण काम करने में, आप किचन में जा रहे हो, 1 घंटा आप नॉर्मली कुक कर लेते थे, अब 1 घंटा वहां खड़े रहने में आपको सांस फूल रही है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ या कुछ हो रहा है, तो ये एक साइन होता है कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कभी कभी हमारी आयरन की टैबलेट भी जो हम लेते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है प्रॉपरली, कभी वॉमिटिंग के चक्कर में, कभी ठीक से नहीं लो तो उसके चक्कर में। तो इसीलिए उस टाइम पे प्लीज आप आओ और आकर चेकअप कराओ, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फीवर आ रहा है या फिट्स हो रहे हैं या मतलब ऐसा जैसे रिंग्स वगैरह जो आप हाथ में पहनते हो बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, हटा नहीं पा रहे, तो ये सब एक साइंस है कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको आके दिखाना है। देन इसके अलावा और ध्यान रखने की चीज, जैसा कि मैम ने पहले बताया था, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज में हम आपको एडवाइस करते हैं, पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आप देख सकते हो वीडियोस उनकी, एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करके। ज्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग और वो सब नहीं करना, बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं प्रेगनेंसी में लूज होते हैं, बेबी को अकोमोडेट करने के लिए, तो वो मसल जो हमारी खिंच रही है वो दर्द करेगी फिर। पहले 3 महीने में भी दर्द होता है कमर में बहुत लोगों को, और टुवर्ड्स द एंड भी, जब बेबी का हेड नीचे फिक्स होना शुरू होता है उस टाइम पे भी जब वो स्पेस बनाता है तो नीचे हिप वाले रीजन में या एक साइड पैर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, वो लिगामेंट्स खींचते हैं, उसकी वजह से होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसमें उसका पेन कम करने के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप उसको और धीरे धीरे पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो उस जगह की। उसके बाद वेट गेन का एक है इशू। वेट गेन हम हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज वेट गेन उनको बताते हैं। यूजुअली अगर आपका एक एवरेज वेट था प्रेगनेंसी से पहले तो अराउंड 11 to 12 kgs हम बोलते हैं आपको एक प्रेगनेंसी में गेन करना चाहिए। उससे ज्यादा वेट गेन भी अच्छी बात नहीं है, उससे कम वेट गेन भी अच्छी बात नहीं है। तो एक एवरेज इंडियन फीमेल का अगर आप
प्री प्रेगनेंसी आप हेल्दी नॉर्मल इंडियन फीमेल हो तो आपको अराउंड 11 से 12 किलो गेन करना चाहिए। अगर आप पहले से ही ओबीस हो, थोड़ा मोटापा है, तो आपको कम वेट गेन करना चाहिए, अराउंड 6 to 7 केजीज भी अगर आप प्रेगनेंसी में गेन कर रहे हो तो वो ठीक है। और अगर आप बहुत ही पतले थे, पहले आपका वेट जो था वो हमेशा नॉर्मल से नीचे रहता था, तो हम आपको थोड़ा ज्यादा अराउंड 15 से 18 केजीज आपको वेट गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ताकि बेबी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है। देन इसके अलावा और सिम्टम कुछ, कभी कभी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है प्रेगनेंसी में। ये होता है क्योंकि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करे, वो यूट्रस के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स को भी रिलैक्स कर देता है। तो इसकी वजह से आपको एसिडिटी ज्यादा होगी, खाना खाने के बाद पेट फूला फूला लगता है, क्योंकि उधर वो सब रिलैक्स पड़े हुए हैं, वो सारे ऑर्गन्स ना धीरे धीरे काम करते हैं। और जब आप स्टूल भी पास करने जाओगे, मोशन पास करने जाओगे, तो वो भी ऐसा हार्ड सा और मतलब बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो आप रात में 1 ग्लास दूध पी के सो, हमेशा हम एडवाइस करते हैं। और क्या कहते हैं, आप अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को बोल के कोई भी एक स्टूल सॉफ्टनर का सिरप जो आता है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, उससे कोई बेबी को नुकसान नहीं होगा, वो आप पी सकते हो रोज रात में कंटिन्यूसली। बट स्ट्रेनिंग हम कहते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्लाइड कैन यू शेयर प्लीज? Yes, ma'am. हाँ, या कैन यू प्लीज शेयर द स्लाइड? Ma'am, is my screen visible स्लाइड now? नंबर 10। हाँ, स्लाइड नंबर 10 आई वांट। तो बेसिकली अभी जो मेन चीज थी वो, हाँ, अब ये एक जो समझना है कि लेबर पेन्स क्या होते हैं। इनिशियली पेशेंट्स जब आते हैं तो उनको थोड़ा एंजाइटी होता है कि पता नहीं डिलीवरी कैसा होगा, कैसे पता चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब लिगामेंट स्ट्रेच हो रहे हैं, बेबी का हेड फिक्स हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ लोअर बैक पेन और हिप बोन में पेन होगा, पर वो लेबर पेन नहीं है। लेबर पेन कैसा होता है, बैक से शुरू होता है, फ्रंट को आएगा, पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्रस, आपको फील होगा कि अंदर ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शन जैसा हो रहा है, और फिर नीचे वो पूरा लेग की तरफ को पेन जाएगा। तो बैक से शुरू होके फ्रंट में आपका जो एब्डोमेन है फ्रंट में आता है, और उसके बाद वो पैरों के थ्रू नीचे जाता है, और फिर पेन चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा ऐसे ही पेन होता है, कंटिन्यूअस ऐसा पेन नहीं रहता। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेबर पेन। जैसे जैसे ये टाइम जाएगा, ये वाला दर्द जो है जल्दी जल्दी आएगा और ज्यादा टाइम के लिए रुकेगा। पहले थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर जाएगा, फिर बहुत देर के बाद आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो मतलब जैसा जैसा आपका टुवर्ड्स डिलीवरी आप प्रोग्रेस करते हो, उतना ही जल्दी जल्दी ये दर्द आता है और उतनी ज्यादा टाइम के लिए लास्ट करता है। ठीक है, वो होता है लेबर पेन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और पेन हो रहा है तो कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम है या फिर वो एक नॉर्मल पेन है, तो वो आप प्लीज उसको कॉल करके या आकर दिखाकर उसको डिसाइड करो। उसके बाद बहुत लोगों को डाउट्स होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन डिलीवरी होगा। तो जैसा कि मैम ने भी आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेबी का पोजीशन। अगर बेबी का हेड जो है वो नीचे है तो इसका मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी हम कोशिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो 36 वीक्स के बाद, 36 हफ्ते से पहले हम नहीं बता सकते कि ये नॉर्मल डिलीवरी का ही जाएगा या सिजेरियन के लिए जाएगा, क्योंकि 36 हफ्ते तक हम टाइम देते हैं कि बच्चे का पोजीशन अपने आप नॉर्मल आए। 36 हफ्ते के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब बच्चे के पास जगह कम है घूमने की। अब वो अगर उल्टा था, मतलब अगर उसके बटक्स नीचे की तरफ है, तो वो वैसे ही आगे कंटिन्यू करेगी प्रेगनेंसी, तो फिर उसमें हम बोलेंगे नहीं, अब उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेबी की पोजीशन 36 वीक्स पे डिसाइड करते हैं, और उसके बाद ही हम आपको असेसमेंट करके, मदर का पेल्विस असेसमेंट करके देखते हैं कि स्पेस एडिक्वेट है कि नहीं है, कि वो बच्चा बाहर आ सकता है। बेबी का वेट देखते हैं कि क्या वो बेबी का एवरेज साइज वेट है या नहीं, कंडीशन कैसी है, मदर को अगर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर लेबर में जैसे वो जाएगी तो उसको दर्द शुरू होगा, तो क्या वो सब पेन्स और वो सब हैंडल कर सकती है, वो सब कुछ देख के फिर हम आपको बताते हैं कि ये पेशेंट नॉर्मल जा सकती है या सिजेरियन के लिए जाएगी। ठीक है, तो सारा रिस्क फैक्टर्स असेस करके। नेक्स्ट स्लाइड।
तो जैसा कि अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, नीचे दो इमेजेस हैं, उसमें एक जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इमेज है उसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आपका जो लेबियल वाला एरिया होता है वहां पे हम एक एनेस्थीसिया देके एक छोटा कट देते हैं ताकि बेबी का हेड इजीली बाहर आ जाए और कोई भी इंजरी ना हो। दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे जो इमेज है उसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सिजेरियन जब हम करते हैं, ऑपरेशन जब हम करते हैं, तो उस जगह पे हम कैसा एक इंसिजन देते हैं, कट किस तरीके से दिया जाता है। 10 सेंटीमीटर का एक छोटा इंसिजन देते हैं फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट स्लाइड। अब बेसिकली बात करते हैं कोविड की। कोविड बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, पेशेंट्स को बहुत ज्यादा एंजाइटी है कि प्रेगनेंसी में कोविड हो गया, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या होगा, मुझे क्या होगा, कैसे उसको हैंडल करना है। तो जो अभी तक का हमारा स्टडीज है, जितने भी अभी तक हमने केसेस देखे हैं, उसमें बेसिकली ये है कि कोविड के पेशेंट्स मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और 90% पेशेंट्स को कुछ नहीं होता, अनइवेंटफुल जाता है जैसे कि कोविड से पहले था। बाकी बचे 10% पेशेंट्स को फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है और सैचुरेशन ड्रॉप होता है। तो कैसे उसको पता करना है, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे जब आप घर पे हैं तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको होम आइसोलेशन आपके कंसल्टेंट ने एडवाइस किया, तो अब आपको क्या करना है उसके लिए। आप घर पे हैं, आप अपना सैचुरेशन बीच बीच में देखेंगे, ठीक है। आप कोई भी जेस्टेशनल एज का प्रेगनेंसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले घबराना, परेशान नहीं होना है। आप अपना सैचुरेशन चेक करो। 6 मिनट्स हम एडवाइस करते हैं कि आप 6 मिनट्स चलो, पहले आप अपना सैचुरेशन चेक करो, फिर 6 मिनट्स वॉक करके देखो दोबारा सैचुरेशन। अगर 3% ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं ड्रॉप हो रहा है मतलब कि आप ठीक हो, आप अपना होम आइसोलेशन ही कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपका 94% से कम सैचुरेशन अगर कभी भी शो होता है पल्स ऑक्सीमीटर में, या फिर बहुत ज्यादा हाई फीवर है, 102 से ऊपर फीवर जा रहा है, तो उसका मतलब कि कुछ इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट करना है उसका, तो आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत है, नहीं तो आप होम क्वारंटीन पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जिन भी कौन सी हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जिनको अंडरलाइन प्रॉब्लम हो सकती है कोविड के चक्कर में, वो कुछ कैटेगरीज हमने डिसाइड करके रखी हुई है। जैसे जो बहुत ज्यादा ओबीस है या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 35 ईयर्स से ऊपर की है, उनको हम बोलते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कोविड की, उसका होने का रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब आप घर पे हैं, मैंने आपको जैसे बताया आप होम आइसोलेशन पे है, तो आपको बेबी के मूवमेंट्स का काउंट करना है, देखना है, अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, पानी खूब ज्यादा पीना है, ठीक है। और 17 डेज का होम क्वारंटीन एडवाइस किया जाता है सबको। जब आप घर में हैं तो मेक श्योर कि जिस रूम में आप हैं वो बहुत अच्छा वेंटिलेटेड हो, विंडोज वगैरह ओपन रहे एंड आप एम्बुलेट करते रहो, पूरे टाइम बेड पे नहीं लेटना है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको पूरे टाइम बेड पे नहीं लेटना है, आप उठ के चल सकते हो, जितना चलोगे उतना बेटर है, पानी जितना पियोगे उतना बेटर है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब क्या कहते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन अप्रूव कर दिया है। पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन थे उनके लिए अप्रूव था, अब प्रेगनेंसी के लिए भी उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हम लगा सकते हैं। क्यों दिया है ये? क्योंकि लास्ट 1 ईयर में जब से कोविड शुरू हुआ है तो बहुत सारी मदर्स जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ कोविड डेथ्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा मैसिवली बढ़ गया था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम उनको भी वैक्सीन देके प्रिवेंट करेंगे। बट एक कंडीशन जो उन्होंने रखी है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट डेटा नहीं है कि इस वैक्सीन से मदर को कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं या जो बेबी जो पैदा हो रहा है उसको लॉन्ग टर्म में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए इसको कंपल्सरी नहीं किया है। इट इज एन ऑप्ट इन टेक्निक, मतलब अगर मदर विलिंग है कि मुझे इस प्रेगनेंसी में कोविड की वैक्सीनेशन लेनी है तो आप ले सकते हो, हम आपको एडवाइस कर देंगे। ऐसा कुछ भी वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की नहीं आपको लगवाना ही लगवाना है, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लगवा सकते। 3 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट की साइड से, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। इन 3 के अलावा कोई और वैक्सीन अभी तक गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं करी है प्रेगनेंसी में लगाने के लिए। ये 3 वैक्सीन भी पेशेंट अगर विलिंग होती है खुद से तो ही उसको लगाना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि सबको लगनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे आप वैक्सीनेशन करा सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट पहले 3 महीने में नहीं कराना या आखिरी के 3 महीने में नहीं कराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप विलिंग हो आप लगवा सकते हो। और अगर आपको इस प्रेगनेंसी में कोविड हुआ है तो फिर हम प्रेफर करेंगे कि आप डिलीवरी के बाद ही वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि एनीवेज वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहेंगी फॉर 84 डेज। तो क्या कहते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी ओनली आप वैक्सीनेशन लगवाओ। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सब नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी देखा गया है, सेम आप 1 से 3 दिन तक फीवर फीवर रहेगा, बॉडी एक इंजेक्शन साइड पे पेन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड, कुछ रेड साइंस होते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स, कुछ लोगों को जो कि प्रेग्नेंट है और या फिर जो नहीं भी प्रेग्नेंट है, उनमें भी ये सब रिस्क होने के चांस हैं। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, सांस फूलेगी, चेस्ट में पेन होगा, क्लॉटिंग का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। एज प्रेगनेंसी में क्लॉटिंग का चांस ज्यादा होता है, तो वैक्सीन के बाद भी इंक्रीज रिस्क होता है कि पेशेंट्स को क्लॉटिंग हो सकता है। और सर दर्द, परसिस्टेंट हेडेक्स। पर ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये 99% पेशेंट्स में नहीं होगा। 1% पेशेंट में चांस है कि ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है वैक्सीन का साइड इफेक्ट। एडवांटेज क्या है कि 90% पेशेंट्स की प्रेगनेंसी जो है वो अनइवेंटफुल जाएगी, उनको कोविड से कुछ नहीं होगा। पर 10% मरीज में ऐसा है कि वो बहुत ही ज्यादा सिक हो सकते हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको डिसाइड करो कि आप उसके रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं हो, क्योंकि बेनिफिट डेफिनेटली है वैक्सीन लेने का। 10% कंपेयर टू 1%, 10% का आपको बेनिफिट मिलेगा उससे, आप सिक नहीं हो सकते, कि ऑलरेडी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो इसीलिए आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो वो आप फिर डिसाइड करके आप अपने जो भी आपको ऑब्स्टिट्यूशन है उनको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अगर आपको सपोजिटली डिलीवरी के टाइम पे कोविड हुआ है तो कोविड इज नॉट कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको सिजेरियन ही होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा सिक, इतने ज्यादा सिक हुआ है कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, सैचुरेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो उसमें हम फिर इमीडिएटली हमें बेबी को बाहर निकालना होता है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, ताकि उसके लंग्स का जो है वो एक्सपेंशन अच्छे से हो जाए और हम रिससिटेट कर पाए। तो इसीलिए उन कंडीशंस में ही सिजेरियन करते हैं। लेकिन अगर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ कोविड पॉजिटिव आ गई बाई चांस या किसी के कांटेक्ट से, और मदर को कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कोई रीजन नहीं है कि आप सिजेरियन के लिए जाओ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी अगर बाकी कंडीशंस फेवरेबल है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। डिलीवरी के बाद बच्चे को आप कोविड पॉजिटिव थे, डिलीवर हुए, अब क्या बच्चे को आप फीड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। ड्रॉपलेट मास्क पहन के हम एडवाइस करते हैं मदर्स को कि आप ब्रेस्ट फीड करो, मास्क से प्रोटेक्शन मिलेगा, बेबी को नहीं होगा। और प्लासेंटा के थ्रू भी एनीवेज एंटीबॉडीज मदर से बच्चे को जाती हैं, तो हम एनीवेज 48 आवर्स के बाद बेबी का आरटीपीसीआर टेस्ट करते ही हैं। हर कोविड पॉजिटिव मदर का के बेबी का 48 आवर्स के बाद एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है देखने के लिए। और क्या कहते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो बेबी आपका सेफ है, आप मास्क कंटिन्यू करो और आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराओ। कांटेक्ट बस अवॉइड करना होता है, इसके अलावा कुछ खास स्पेसिफिक वो नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है कि अगर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का बेबी को, ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कोविड वायरस बेबी को जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपना होम आइसोलेशन कंटिन्यू करो और मतलब पानी खूब ज्यादा पीना है, और आपको हेपेरिन का एक इंजेक्शन मिलेगा, वो आपको 10 दिन तक लेना है डिलीवरी के बाद। इतना ही बस बेसिक ध्यान रखने की चीजें होती हैं जो आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? Thank you, ma'am. We will move to the questions, but just वो last के कुछ एक आध slides बचे हैं, which normally I go second, so I've finished those. I'll just complete those. Okay. Just give me 1 minute. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning
the new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice. ये आज के सारे अटेंडीज के लिए मामा अर्थ और कॉड लाइफ की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है. मामा अर्थ इज अ ब्रांड जो स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल. सो अगर आप अपने लिए मसाज ऑयल्स, बेबी के लिए ऑयल्स या निपल बटर क्रीम्स वगैरह आप लेना चाहते हैं, सो दिस इज अ ग्रेट ब्रांड टू लुक एट. सो मेक श्योर दैट आप इस वाउचर का सही इस्तेमाल करें. कॉड लाइफ की टीम आपसे सेशन के 48 to 72 आवर्स की टच में रहेगी और इस सेशन की रिकॉर्डिंग एज वेल एज ये वाउचर आपके साथ शेयर करेगी. ये कुछ बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है. दीज आर रिटन बाय मी. प्रीनेटल फिटनेस एक्सरसाइजेस के ऊपर है फॉर प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी विद पिक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन. Parenting mantras is life after baby. So from breastfeeding to toilet training to sleep training, बहुत सारे टिप्स हैं इस बुक में. And recipe book for babies जो जब खाना खाना शुरू करते हैं तो some variety of foods that you can make. तो Amazon पे जरूर चेक करिएगा, ये सारे अवेलेबल हैं. Now we are ready for questions. मैंने स्क्रीन पे अपने पर्सनल वेबसाइट एड्रेस, फेसबुक और इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब हैंडल डाल दिया है. I have a free tips group. It's only a tips group. Every morning आपको WhatsApp पे tip मिल जाएगा. You can make a note of this number. My staff will add you to the group. And इसके नीचे Cord Life के सारे phone numbers हैं. Calling, WhatsApp, toll free as well as SMS number. So अगर आप presentation लेना चाहते हैं to learn more about stem cell banking, it's a free presentation जो आपके घर पे या Zoom call के द्वारा आपके साथ किया जाएगा. So take advantage and learn about get all your questions answered about stem cell banking. As you know, आप लोग को हमने mute पे रखा है, so you can't speak, but we will be happy to answer any questions that you have in the question box. So I'm going to move to the questions now. Would anybody like to ask any questions? मैम ने तो बहुत अच्छे से काफी सारी चीजें explain कर दी, but जब तक मैम questions आते हैं या अगर ऑडियंस को भूख लगी है ऑलरेडी दे आर रेडी टू गो अवे फॉर देयर लंच, तो एक जनरल क्वेश्चन है कि जस्ट जनरली कोविड के ही रिलेटेड है कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो क्या उसकी डिलीवरी कोविड फैसिलिटी में ही होती है या उसके डॉक्टर के साथ उनके हॉस्पिटल में हो सकती है? कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को कोविड फैसिलिटी में ही रखा जा सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है दैट दे एक सेपरेट एरिया होना चाहिए आइसोलेशन का. तो इसलिए डिलीवरी के बाद भी उनको आइसोलेशन एरिया में ही रहना पड़ेगा. तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिजेरियन ही करना है, नॉर्मल डिलीवरी भी ट्राई की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं. राइट. सो कोविड फैसिलिटी कोविड सेंटर्स में ही जाके होगा. राइट, बट लेकिन ये कोविड सेंटर्स में जाना आसान होता है? इज इट डिफिकल्ट? क्योंकि मदर्स जनरली डरते हैं कि कोविड सेंटर में क्या होगा और इन्फेक्शन ना हो जाए. बेसिकली कोविड सेंटर में ओनली डिफरेंस ये होता है कि इट्स लाइक डॉक्टर आपको पीपी किट में मिलेगा, बाकी इट्स लाइक अ नॉर्मल हॉस्पिटल ओनली. तो उसमें ऐसा कुछ डरने घबराने की बात नहीं है. स्पेसिफिकली पेशेंट्स का ध्यान रखा जाता है हर कोविड सेंटर में कि जो स्पेशली एंटीनेटल पेशेंट्स हैं उनको आप प्रेफरेबली सेपरेट रूम, मतलब बाकी जनरल वार्ड में बाकी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ ना रखा जाए क्योंकि बेबी एक्सपोज होता है. और बहुत सारे सेंटर्स विलिंगली अलाउ कर देते हैं कि साथ में कोई एक बाईस्टैंडर बेबी का ध्यान रखने के लिए कोई एक बंदा साथ में अटेंडेंट या बाईस्टैंडर कोई जो ऑलरेडी पॉजिटिव है या एक्सपोज्ड है उसको साथ में उस रूम में या उधर रहने के लिए परमिशन दें. क्योंकि डेफिनेटली इट इज स्कैरी. और बट आप एक बार वंस यू हैव कम पॉजिटिव तो आप
टेंशन मत लीजिए, एंग्शियस मत होइए, इट्स लाइक अ नॉर्मल हॉस्पिटल ओनली, बस सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि डॉक्टर्स विल बी इन पीपी किट, दैट्स ऑल, डॉक्टर्स एंड नर्सेज अटेंडिंग, दैट्स ऑल। ओके, लवली। मैम एक क्वेश्चन और है एक मदर से, वो पूछ रही है कि चॉइस मिलता है क्या मदर को कि वो नॉन मेडिकेटेड डिलीवरी करे विदाउट एनाल्जेसिया और एपिड्यूरल? इज इट द मदर्स चॉइस और इज इट द डॉक्टर्स चॉइस? या इट्स ऑलवेज द मदर्स चॉइस। आप अगर एपिड्यूरल इज लाइक जो पेशेंट्स पेन टॉलरेट करना चाहते हैं, जिनको वो एक्सपीरियंस चाहिए कि मुझे फील करना है कि कैसे पुशिंग सेंसेशन क्या होता है, बेबी का पेन, उनको हम नॉर्मल प्रोसीड करने के लिए कहते हैं। जिनको लगता है कि नहीं पेन थ्रेशोल्ड मेरा कम है, बहुत ज्यादा पेन होगा, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती, उनको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया करके एक छोटा एक ट्यूब होता है जो आपका स्पाइनल उसमें डाल दिया जाता है, उसमें मेडिकेशन देते रहते हैं, तो आपको फील नहीं होता वो पेन, कॉन्ट्रैक्शन आपको पता चलेगा बट उसका पेन नहीं पता चलता, तो वो एक एडिशनल हम वो दिया जाता है। राइट, कंपल्सरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। एंड इट ऑल्सो आई थिंक डिपेंड करता है कि अगर आपका लेबर बहुत लॉन्ग है और आप थक रहे हो, तो कभी कभी पेन रिलीफ लेके थोड़ा रेस्ट करना, so that you can welcome the baby with हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स थक के फिर रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप सिजेरियन कर दो, हमसे नहीं होगा, वो वाला एक चीज होता है। तो अननेसेसरली ऑपरेशन करना भी आप मतलब पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए दोनों के लिए एक हेडेक होता है, क्योंकि और ज्यादा ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम, तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क ज्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। मतलब इट्स कॉल्ड नॉर्मल फॉर अ रीजन, राइट? तो इसलिए तो वो इसलिए हम भी थोड़ा प्रेफर करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होना इज बेटर। तो जब पेशेंट्स एग्जॉस्टेड होते हैं या थक रहे होते हैं तो भी उनको एपिड्यूरल ऑफर किया जाता है, क्योंकि जब एग्जॉस्टेड हो जाती है मदर, तो उसको पुश करने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है और वीकनेस फील होती है। एंड फिर मैंने देखा एक्चुअली कि मदर डिलीवरी के बाद बाहर आके बस बेबी को देखना भी नहीं चाहती और उसको ऐसा लगता है बस हो गया मुझसे। तो जब बेबी बाहर आए, वी शुड be very happy and excited because I think it is a once in a lifetime moment, so you should enjoy it. Right. अभी एक आध दो questions exercise के ऊपर भी है, so I would just tell all the mothers कि हमने इस session में exercises नहीं cover किए हैं, but फिर भी one of the mothers is asking कि कोई exercises आप बता दो। So पहले तो exercise शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो जस्ट रैंडमली अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस बता दे तो वो एक्सरसाइजेस आपको नहीं स्टार्ट करने चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल नहीं है, बट कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सरसाइज मना की जाती है। सो डॉक्टर से बात करे बगैर आप एक्सरसाइज ना शुरू करें। अगर आप सुपरविजन के साथ करें तो दैट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज आपसे गलतियां नहीं होंगी, इंजुरीज नहीं होंगी। अगर सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल, देन द बेस्ट exercise that you can do is go for a walk. किसी को सिखाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट एंश्योर कि आप अच्छे जूते पहने, वेयर कॉटन क्लोथ्स, स्टे हाइड्रेटेड एंड गो फॉर अ वॉक. डोंट गो इन क्राउडेड प्लेसेस. आई नो अभी कोविड का टाइम है तो क्राउडेड पार्क्स वगैरह भी बंद है, बट जैसा नहीं है कि क्राउडेड जगह पे चले जाएं. अपने बिल्डिंग में वॉक कर लें, टेरेस पे वॉक कर लें. सो यू डेफिनेटली हैव दोज ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स. और अगर सुपरविजन पॉसिबल है तो एंटीनेटल एक्सरसाइजेस आप जरूर कर सकते हैं. मैम एक क्वेश्चन आई थिंक आप आंसर कर दीजिए. आई थिंक ये क्वेश्चन आपको काफी पेशेंट्स पूछते होंगे कि डक वॉक कब शुरू करते हैं? डक वॉक बेसिकली लाइक हम अपनी तरफ से एडवाइस करते हैं आफ्टर लाइक इट शुड बी अराउंड लाइक 32 वीक्स के बाद ओनली, बट नॉट लाइक इतना नॉट इन अर्ली प्रेगनेंसी. एनीवे स्पेसिफिकली हम ऐसा कुछ रिकमेंड करते नहीं है किसी को भी. वी जस्ट एडवाइज अ नॉर्मल वॉक, क्योंकि एक्सरसाइजेस में या डक वॉक विल हेल्प इन नॉर्मल डिलीवरी एंड एवरीथिंग, बट हमारा ये असेसमेंट होता है कि आप जितना क्या कहते हैं पेल्विस आपका बाय व्हाट यू कॉल फॉर्मेशन ही जितना लूज होगा और वो होगा तो नॉर्मल डिलीवरी विल हेल्प. एक्सरसाइजेस उसको फैसिलिटेट करती हैं, इट डजंट एक्चुअली कॉज नॉर्मल डिलीवरी. तो या बट इट डेफिनेटली 32 वीक्स के बाद जब एक बार आपका बेबी का पोजीशन थोड़ा स्टेबल हो जाए, एवरेज वेट बेबी गेन कर ले, तो उसके बाद मतलब 8th मंथ कंप्लीट होने के एंड पे आप कर सकते हो. उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले देयर इज अ चांस कि यू विल गो इनटू प्रीटर्म लेबर या
कुछ वो होने का रिस्क होता है, तो इसलिए तो after that बेसिकली अगर आपकी मदर इन लॉ आपसे घर में झाड़ू कटका करने के लिए बोल रही है तो मत करिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट? yeah. मैम एक क्वेश्चन और ये है कि if the mother wants to have the advantage of the golden hour and delayed cord clamping, is that something that is practiced? Is it allowed? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज अ रूटीन नाउ. आजकल अगर बेबी पैदा होते ही डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि हम 30 to 60 सेकेंड्स वी वेट आपका बेबी का कॉर्ड कट करने से पहले. क्या उससे एडवांटेज होता है कि बेबी को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाता है मदर से, तो उसमें अनीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं. तो वो आजकल इट्स अ रूटीन प्रैक्टिस विच इज बीइंग डन एवरीवेयर. इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर. तो अगर बेबी का अच्छा क्राई है, बेबी का वेट अच्छा है, इमीडिएट रिससिटेशन की जरूरत नहीं है, तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग ही प्रैक्टिस किया जाता है. अगर कुछ भी ऐसा है कि बेबी डिलीवर होते ही क्राई नहीं किया या लेबर डिफिकल्ट था या हमें कहीं इंजरी का रिस्क लग रहा है, कुछ भी लग रहा है जिसको देखने की इमीडिएटली जरूरत है, तो फिर हम इमीडिएट कॉर्ड क्लैंप करके पीडियाट्रिशियन को बेबी हैंड ओवर कर देते हैं. नहीं तो सब जगह आजकल डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग ही प्रैक्टिस होता है. And what about breastfeeding, ma'am? Because golden hour is also associated with immediate breastfeeding. Yeah. Breastfeeding should be, we started within as soon as after normal delivery, and cesarean में भी wait within for half an hour. थोड़ा वो क्योंकि anesthesia का effect थोड़ा चला जाए और patient थोड़ा stabilize हो जाए, तो we give a half an hour time. But normal delivery में immediately we will start breastfeeding. बट एक बहुत कॉमन डाउट और कंफ्यूजन होता है वो ये कि मिल्क अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा. तो एक चीज जो आपको समझनी है, वो नॉर्मल मिल्क बनने में, उसका फ्लो आने में, इट विल टेक मिनिमम 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स फॉर प्रॉपर मिल्क टू स्टार्ट कमिंग. उससे पहले वो थोड़ा ऐसा पानी जैसा ड्रॉप ही आएगा. तो समटाइम्स देयर माइट बी अ नीड टू सप्लीमेंट विद एडिशनल फॉर्मूला फीड्स. आप पूरा उसको बेबी को 100% ब्रेस्ट फीड पे नहीं रख सकते इनिशियल 1 या 2 दिन. उसके बाद से कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months कैन बी प्रैक्टिस. राइट. ओके, सो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं है. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू ऑडियंस जो हमारे साथ स्टार्ट से एंड तक जुड़े रहे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस and keeping the patience, and हमने आपका लंच आवर पे आपको वेट करवाया है, so please don't stay hungry any longer. एक मदर पोस्ट टिप्स मांग रही है, so मैम that's a very big topic, and ऐसे कॉड लाइफ की टीम आपके साथ टच में रहेगी, तो आप अपना नाम जरूर लिखवा दीजिए. जो हमारे पोस्ट नेटल टाइप ऑफ वेबिनार्स होंगे वो आपको उसमें जरूर इनवाइट करेंगे, so then you will be able to get all the information in that session also. Right? I just wanted one question I saw, that is it necessary to start breast massage during pregnancy? This sorry I'm interrupting and addressing this question. I want you to know that don't do breast massage during pregnancy. It's not a good sign, क्योंकि ये आपका जो मिल्क प्रोडक्शन का हार्मोन होता है उसको बढ़ा देगा और बेबी का सडन डेथ, इंट्रायूट्राइन डेथ होने का चांस बढ़ जाता है. तो इसलिए प्लीज डोंट गो फॉर एनी ब्रेस्ट मसाज और एनीथिंग. अगर कभी लग रहा है कि ब्रेस्ट में से कुछ सिक्रीशन या कुछ आ रहा है, उसको वैसे ही छोड़ दो. डोंट टच इट एंड वेयर अ गुड सपोर्टिव ब्रा. जैसा कि मैम ने भी आपको एडवाइस किया था, ब्रा सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, बट डोंट डू ब्रेस्ट मसाज और एनीथिंग. दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल. Wonderful, absolutely, because nipple stimulation, breast stimulation can also result in preterm contractions. So we want you to have a full-term healthy baby, because NICU की जरूरत ना पड़े. Parents and baby, everybody goes home smiling without any stress. That is the motivation of every maternity ward, right? Exactly. Okay, lovely. Okay. So thank you. We will इस session के बाद आपके पास एक link आ जाएगा, so you can share your feedback. कॉड लाइफ की डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ. सो थैंक यू दीक्षित मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग सो मच insights and your valuable inputs. Thank you Quad Life for organizing this session, and we look forward to seeing all the audience in other classes or sessions that are being organized. Thank you everybody. Thank you so much. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani?
or when the moment is celebrated by all. When you start learning again, or with a new rule. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice.